So good morning all of you. So in unit 3 it is actually communication and motivation. So we have done motivation part. Now the communication part, and in communication the one important thing that is being mentioned is the transactional analysis. Transactional analysis, and the another thing that has been mentioned after transaction analysis is Johari window. Right? So let's first discuss what is transactional analysis. Transactional analysis, you can see that the word transaction. So it's a transaction between whom? So actually it's a method of analyzing or analysis and understanding human behavior. Analyzing and understanding human behavior as an outcome of social transaction in a communication between two individuals. So it means it's a social transaction. Social transaction taking place. Why we are saying social transaction? Because it's not a financial transaction, it's a social transaction. When you interact in a communication, so there are some responses when you do it. So there is a stimulus and there is a response in any communication, right? So two individuals, right now also we are having a communication. I am communicating, you are responding. Okay? How you are responding? You may not be responding verbally, but you are responding by some way nodding your head or maybe asking the question like that. So this is a transaction. This is a transaction, social transaction in a communication exchange. And that is what happening between two individuals. Okay? So kya hai? It's a method of analysis and understanding. What you need to understand? Human behavior. From where? From this social transaction which is taking place between two individuals, right, in a communication exchange, where one individual may be giving some stimulus and another giving the response. आपने देखा होगा कि दो लोग बात कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन हो रहा है उनके बीच में, सोशल ट्रांजेक्शन हो रहा है. कोई भी दो लोग बात कर रहे हैं, आप एज ए फ्रेंड बात कर रहे हैं, या टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, या आप अपने घर में पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं. कोई भी दो लोग जब बात करते हैं आपस में तो वो एक ट्रांजैक्शन, सोशल ट्रांजैक्शन हो रहा है कम्युनिकेशन में. एंड व्हेन यू सी दैट ट्रांजैक्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दैट हाउ पीपल आर बिहेविंग, वो ट्रांजैक्शन एनालिसिस का पार्ट है. ठीक है. अब ये मेथड, इसमें ऐसा क्या हो गया कि इसको हमने बोला कि ये मेथड है, और क्या ये हेल्पफुल हो सकता है? ये ह्यूमन बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि बिहेवियर से जो भी रिलेटेड होगी, इसका मतलब एक बॉस और एक सबॉर्डिनेट का इंटरेक्शन हो सकता है, दो सबॉर्डिनेट्स का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, दो टीम मेंबर्स का हो सकता है. तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब भी दो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्ट करें तो वो हेल्दी मैनर में इंटरेक्ट करें. द इंटरेक्शन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हेल्दी. सो बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय एनालाइजिंग द communication responses between the two individuals, we want to encourage the desirable behavior and we want to discourage the undesirable behavior. तो कभी भी जब दो लोग बात कर रहे हैं तो आप आज के बाद, इस थियरी को समझने के बाद, आप पता लगा पाएंगे कि हाँ यार, इन दोनों में कैसा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आफ्टर दैट आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर कर पाएंगे. कई बार क्या होता है, हम दूसरे का रिस्पॉन्स ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, तो
तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर दो लोग आपस में देखा होगा बात करते करते झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वो क्यों है? बिकॉज द कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस गो रॉन्ग, वो गलत हो जाते हैं। तो ये एक उसने मेथड जो है ना, एक साइकेट्रिस्ट था, एक कैनेडियन बॉर्न यूएस साइकेट्रिस्ट, जिसका नाम था एरिक बर्न। वैसे उसका नाम बर्निस्टिन था, बट वी कॉल इट एन बर्न, एरिक बर्न। ठीक है, इसने ये डेवलप की टेक्निक इन 1950s में। ठीक है, एक कनाडा में बॉर्न हुआ था 1910 में, 1910 में ये पैदा हुए और 1970 में मर गए। एट द एज ऑफ 60 ही डाइड, बट ही वाज ए फॉलोअर ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। और सिगमंड फ्रॉइड बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट रहे हैं जिन्होंने साइको एनालिसिस दिया था। आपको आपके सिलेबस में नहीं है वो, तो यू मे नॉट रिक्वायर इट, बट ही वाज ए फॉलोअर ऑफ दैट एंड ही ट्राइड टू डेवलप दिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी, द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 ईगो स्टेट दी। He gave 3 ego states कि कोई भी दो लोग ना 3 ईगो स्टेट से बात करते हैं। ठीक है, ईगो स्टेट मींस द साइकोलॉजिकल स्टेट जिससे वो बात करते हैं या जिससे वो रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब ये जो रिस्पॉन्स हो रहा है दो लोगों के बीच में, जो स्टिमुलस, मतलब जो उसको एक स्टिमुलस दे रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, और बदले में जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो ये लोग दे रहे हैं। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो एक ट्रांजैक्शन है। तो वो ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो 3 ईगो स्टेट से होती है। दिस इज व्हाट ही ट्राइड टू एक्सप्लेन, दैट देयर आर 3 ईगो स्टेट्स जिससे वो ट्रांजैक्शंस हो सकती है। और 3 ईगो स्टेट्स हैं पैक, मतलब P capital, A capital, C capital. P stands for parent ego state. Parent ego state. A stands for adult ego state. And C stands for child ego state. ठीक है, तो कोई भी दो लोग बात करेंगे उसमें ये 3 ईगो स्टेट्स होंगी अकॉर्डिंग टू एरिक बर्न। तो पेरेंट ईगो स्टेट क्या होती है? पेरेंट ईगो स्टेट डजंट मीन दैट ए पेरेंट इज इंटरैक्टिंग, एनीवन कैन इंटरैक्ट फ्रॉम दैट ईगो स्टेट, लेकिन पेरेंट को सिंबलाइज किया है। तो पेरेंट को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं? हम क्या समझते हैं कि पेरेंट क्या होता है? पेरेंट हमेशा पेरेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय rule based, value based, admonitions like do's and don'ts, or you can say authority based. तो पेरेंट क्या करते हैं, भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा होता है ना पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शंस। या ऐसे बोलेंगे, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं हूं, मैं देख लूंगा। तो ये पेरेंट ईगो स्टेट जो होती है वो रूल बेस्ड होती है, वैल्यू बेस्ड होती है, एडमोनिशंस इन्वॉल्व होते हैं, डूज एंड डोंट्स, ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना है। ठीक है, या अथॉरिटी बेस्ड होती है, मतलब उसमें कुछ आपको अथॉरिटी का एलिमेंट मिलेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कल अपना सब असाइनमेंट करके लाएंगे, दिस इज द स्टिमुलस विच आई एम गिविंग फ्रॉम विच ईगो स्टेट? पेरेंट ईगो स्टेट। क्योंकि एक अथॉरिटी बेस्ड है, ठीक है, या कोई वैल्यू बेस्ड होगा या कोई डायरेक्शन बेस्ड होगा, तो वो कभी भी इस तरह का जो स्टिमुलस होगा वो पेरेंट बेस्ड, पेरेंट ईगो स्टेट से होगा।
तो उन्होंने बोला कि दो तरह के पेरेंट हो सकते हैं ईगो स्टेट में। एक है नर्चरिंग पेरेंट and another is critical parent. एक नर्चरिंग पेरेंट हो सकता है जो बोलता है डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ इट, या आपको ये काम किया बेटा चिंता ना करो मैं हूं। तो ये भी एक स्टिमुलस है फ्रॉम पेरेंट ईगो स्टेट, बट इट्स ए नर्चरिंग पेरेंट। अच्छा, क्रिटिकल पेरेंट क्या होगा? सो नर्चरिंग पेरेंट इज ऑलवेज सपोर्टिव, नर्चरिंग पेरेंट इज सपोर्टिव, क्रिटिकल पेरेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग है ना, तो वो क्या बोलेगा? इसमें जो पेरेंट डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा, ये करना है, डू इट, वो बोलेगा डू इट और डोंट डू इट। ठीक है, तो ये दोनों ही पेरेंट ईगो स्टेट मानी जाएंगी। बेटा कल आजा मेरे पास, मैं तेरे को ये पढ़ाऊंगा, अगर टीचर ऐसे बोल रहा है वो भी पेरेंट ईगो स्टेट है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब तरह के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ये भी एक पेरेंट ईगो स्टेट है। ठीक है, व्हाट इज एडल्ट ईगो स्टेट? एडल्ट ईगो स्टेट इज फैक्ट बेस्ड, रैशनल और रैशनल एक्सचेंजेस, फैक्ट बेस्ड, रियलिटी बेस्ड। किसी ने पूछा अरे भाई साहब टाइम कितना हुआ है, क्या टाइम हुआ है, बताओ क्या टाइम हुआ है। तो मेरा जो टाइम, जो मैं पूछ रहा हूं कि टाइम क्या हुआ है, ये मैं क्या पूछ रहा हूं? मतलब दिस इज द फैक्ट आई एम सीकिंग, इट्स फैक्ट सीकिंग। कैन यू डू द असाइनमेंट टुमारो? आई एम आस्किंग, आई एम सीकिंग, सो दिस इज फैक्ट बेस्ड। ठीक है, सबमिट द रिपोर्ट टुमारो। एक बॉस कह रहा है अपने सबऑर्डिनेट को कल 5 बजे आप ये रिपोर्ट सबमिट कर दोगे, कैन यू डू दैट? ठीक है, तो वो उससे एक एडल्ट ईगो स्टेट से ऑपरेट कर रहा है। एडल्ट ईगो स्टेट थोड़ा सा माना जाता है कि मैच्योर होगा, फैक्ट बेस्ड होगा, रियलिटी बेस्ड होगा, ऑथेंटिक होगा। ठीक है, कोई इमोशनल कंटेंट नहीं होगा, नो इमोशंस, कोई इमोशंस नहीं होंगे। यहां तो नर्चरिंग पेरेंट में इमोशंस मिले ना, बेटा चिंता ना कर, मैं हूं, मैं देख लूंगा, इमोशंस है। इसमें एडल्ट ईगो स्टेट में कोई भी इमोशंस नहीं है। ठीक है, अब चाइल्ड ईगो स्टेट क्या है? इन चाइल्ड ईगो स्टेट इट इज इंपल्सिव। क्या होता है चाइल्ड? इंपल्सिव, स्पॉन्टेनियस, क्यूरियस, रिबेलियस भी हो जाता है कई बार। नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे चांद चाहिए, मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए, रोने लग जाता है? बच्चे का देखा ना, बच्चा रोता है तो वो चांद देखता है रात को, रोते वो रोने लग जाता है, कहता नहीं मेरे को तो ये चाहिए। अब दैट इज एन इम्पॉसिबल थिंग टू गेट इट। तो पेरेंट्स भी बोलते हैं अच्छा सुबह लेके आएंगे, सुबह दिखता नहीं है। तो चाइल्ड ईगो स्टेट इज इंपल्सिव, स्पॉन्टेनियस, क्यूरियस, रिबेलियस
एंड ओबीडियंट ऑल्सो। चाइल्ड ईगो स्टेट ये भी होती है कि बच्चे को बोलते मान जाता है। तो इसका मतलब ये जो दो तरह की ईगो स्टेट बताई उन्होंने कि चाइल्ड की हो सकती हैं, वन इज द फ्री चाइल्ड और दूसरा हो गया अडैप्टिव चाइल्ड। फ्री चाइल्ड जो कुछ भी करेगा, जो मन में आएगा करेगा, शैतान होगा सबसे ज्यादा, है ना। एडेप्टिव चाइल्ड हु इज ओबीडियंट, अगर सिखाया गया उसको, ओबीडियंट हो गया, वो अडेप्ट कर लिया उसने। हमेशा से पेरेंट्स ने बताया कि यू हैव टू ओबे, जो बड़े बोलते हैं उनको मान लेना चाहिए, तो बच्चा वैसा ही हो जाता है, वो कहता है ठीक है जो कह रहे हैं मैं मान लेता हूं। आप देखो कुछ ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट पेरेंट से बड़ा हाईली रेस्पेक्टफुल रहे, ओबीडियंट रहे, और वो कॉलेज में या स्कूल में आके टीचर से रिबेलियस हो जाए। ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स दैट इफ यू आर रिबेलियस काइंड ऑफ पर्सन at home, then only you will become rebellious outside. Otherwise, if you are obedient at home, you have been groomed like that, you will remain that. Because the first authority in your life that you encounter, अपने जीवन में जो पहली अथॉरिटी आप एनकाउंटर करते हो, वो आप अपने पेरेंट्स की करते हो। ये लाइट क्यों नहीं जल रही है? Got it? So, या तो चाइल्ड ओबीडियंट होगा या रिबेलियस होगा। फ्री चाइल्ड इंपल्सिव है, कुछ भी करेगा वो, स्पॉन्टेनियस भी रहेगा। तो ये तीन ईगो स्टेट उसने डिस्क्राइब की, ठीक है। अब डिफरेंट कम्युनिकेशन जो होंगे जो दो लोगों के बीच में, अब आप उसको एनालिसिस करो कि यार ये पेरेंट ईगो स्टेट से है ये कम्युनिकेशन, या ये एडल्ट ईगो स्टेट से है, या ये चाइल्ड ईगो स्टेट से है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री ईगो स्टेट्स ही सेड दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ट्रांजैक्शन एनालिसिस है, ठीक है। अब आपको देखो समझ में क्या आया कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस को ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन है, सोशल ट्रांजैक्शन है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन ए कम्युनिकेशन एक्सचेंज। तो एक स्टिमुलस दे रहा है, एक रिस्पॉन्स दे रहा है, एक बोल रहा है, एक उसके बदले में रिस्पॉन्ड कर रहा है। और वो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो थ्री ईगो स्टेट से कर सकते हैं। और एरिक बर्न ने बोला कि ये थ्री ईगो स्टेट को आप एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, और फिर देखो कि दो लोग कैसे बात कर रहे हैं। पर्पस क्या है इसका, कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन निकल के आए, झगड़े ना हो। बिकॉज अनहेल्दी कम्युनिकेशन लीड्स टू रॉन्ग ह्यूमन बिहेवियर, वो बिहेवियर भी गलत हो जाएगा। कई बार ऐसा लगता है ना यार, इससे बात करना ना, इससे बात करने का मतलब है कि मुसीबत इनवाइट करना है। मतलब ही इज नॉट रिस्पॉन्सिव, सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता, कुछ बोलो कुछ का कुछ बोलता है। अगर आप इसको इस चीज के बारे में बोलोगे ना, तो ये ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। आप इसको इसके हेयर स्टाइल के बारे में बोल दो तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। आप इसको बोल दो कि यार तेरे सन ग्लासेस ऐसे हैं, तो ये ऐसे रिएक्ट करता है। इसको बोल दो कि यार ये तुम दाढ़ी के बारे में बोल दो इसको, तो वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि इफ यू अंडरस्टैंड वेल दिस एनालिसिस, यू कैन मैनिपुलेट द बिहेवियर ऑल्सो। आप दूसरे का बिहेवियर भी मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर मुझे ये पता है कि इस टीचर की तारीफ कर दो तो बड़ा खुश हो जाता है, बड़ी खुश हो जाती है, नंबर देते हैं अच्छे से, है ना। मैम आपने जो पढ़ाया ना आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, बाद में जाके अलग से बोल दिया, टीचर खुश। अब ये एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर है कि आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया कि मुझे पता है कि अगर मैं इसको ऐसे स्टिमुलस दूंगा तो रिस्पॉन्स ऐसे आएगा। तो इसका मतलब अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो ईगो स्टेट्स को और दूसरे बंदे का रिस्पॉन्स क्या आता है, तो आप बहुत अच्छा है ना, आप जो है मैनिपुलेट भी कर सकते हो। तो वंस यू अंडरस्टैंड, तो उसने बोला कि अब
टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, अब लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस on the basis of these three ego states. पहला है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शंस, आई नहीं है इस कॉम्प्लीमेंट्री में, ई है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन विच कंप्लीट्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन कैसे होती है? ये सबसे हेल्दी ट्रांजैक्शन है और इसको ऐसे देखा जाता है, इसको स्टडी किया जाता है ऐसे। अब दीज आर द टू इंडिविजुअल्स, एक बंदा यहां पे बैठा है, एक ये है और एक ये है, ये तीन ईगो स्टेट्स हैं। दिस इज द बॉस, दिस इज द सबऑर्डिनेट। नाउ बॉस सेज, बॉस बोल रहा है तुम लेट क्यों आए हो? बॉस ने बोला है व्हाई यू हैव कम लेट। Now the boss is operating from which ego state? बताओ। He is operating from parent ego state. Now what he is expecting? अब जब मैं बोल रहा हूं कि तुम लेट क्यों आए हो, what I expect? कि इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए? हैं? सोच के देखो, मैं पूछ रहा हूं कि क्यों लेट आए हो भाई? कैसे रेस्पॉन्ड करोगे जेन्युइन रीजन? हाँ, ओबीडियंटली। You will respond obediently. It means when I am operating from parent ego state, I am expecting the response from child ego state. तो वो बोलता है सॉरी सर, मैं अगली बार से टाइम पे आऊंगा, आज गलती हो गई, मेरे को मेट्रो मिस हो गई थी, मैं अगली बार से टाइम पे आऊंगा। दिस इज ए हेल्दी ट्रांजैक्शन। बात खत्म हो गई वहीं पे, ठीक है, बात वहीं पे खत्म हो गई। So boss is saying why you are late? Always. Why you are late always? Employee is saying sorry sir, I will be on time next time. ठीक है, किसी ने समझाया कि जब बॉस को गुस्सा आए तो चुपचाप सुन लेना, सॉरी बोल देना, बात खत्म हो जाएगी। क्यों? बिकॉज वो पैरेलल ट्रांजैक्शन होंगी। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज पैरेलल, हमेशा पैरेलल होंगी ये। अगर ये ट्रांजैक्शन क्रॉस्ड हो गई तो, अगर ये ट्रांजैक्शन क्रॉस्ड हो गई तो बॉस ने बोला व्हाई यू आर लेट ऑलवेज। एम्प्लॉय ने पता क्या बोला? यू ऑल्सो गॉट लेट लास्ट टाइम एंड when others are late, you don't say anything to them, you always scold me. अब ये क्या हो गया? क्रॉस ट्रांजैक्शन हो गई ये। तो
बॉस ने तो सोचा था कि ये मुझे बोलेगा सॉरी सर, और उसने क्या बोल दिया कि पहले तू बता तू क्यों लेट आया, पहले तू अपना हिसाब दे मुझे. So he was not supposed to ask, but he has done it. Transactions have become crossed. So this is an unhealthy transaction. This is a healthy transaction. ठीक है. Can you submit the assignment tomorrow? Teacher is asking the students. Which adult ego? Which ego state? Adult ego state. Students say कि sir, 2 assignments have already been given. We can give next week. If you allow us, we can give next week. So दिस इज फैक्ट बेस्ड. आपने बताया कि 2 असाइनमेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं जिनको हमें खत्म करना है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड इफ यू गिव 5 days टाइम वी विल बी एबल टू गिव इट नेक्स्ट वीक. ये हो गया एडल्ट से एडल्ट. तो हेल्दी कम्युनिकेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अगर कोई स्टूडेंट ये बोल दे नहीं करता मैं असाइनमेंट, क्या मिलेगा असाइनमेंट करके, सारे असाइनमेंट बेकार देते हो, सिर्फ लिखते रहते हैं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस ट्रांजैक्शन. तो पर्पस क्या है हमारा? व्हाई वी वांट टू स्टडी? एरिक बर्न यही बोल रहा है कि अरे 2 लोगों का कम्युनिकेशन देखो कि वो किस ईगो स्टेट से ऑपरेट कर रहे हैं, एंड ट्राई टू हैव ए हेल्दी ट्रांजैक्शन. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट विल ऑलवेज ऑपरेट फ्रॉम पेरेंट ईगो स्टेट. Parent can operate from child ego state and the child can operate from the parent ego state. कई बार चाइल्ड, देखो ना, कई बार पेरेंट्स डरते हैं बच्चों से. और सबसे बड़ा पैराडॉक्स पता है क्या है लाइफ का? कि जब पेरेंट्स बच्चे होते हैं तब वो रियलाइज नहीं करते कि पेरेंट्स की क्या समस्या होती है. और या कन्वर्सली मैं बोलता हूं कि बच्चों को यह पता नहीं चलता कि पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है. जब वो बड़े हो जाते हैं और जब उनका रोल चेंज होता है, जब वो खुद पेरेंट बन जाते हैं, देन दे रियलाइज कि हम क्या गलती करते थे और हमारे पेरेंट हमें क्यों डांटते थे. बट एट दैट टाइम इट्स टू लेट, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर हम उस समय में जा नहीं पाते हैं. तो हमें लगता है, फिर रियलाइज करते हैं नहीं यार मेरे फादर मुझे सही डांटते थे, अगर वो नहीं डांटते तो आज हम यहाँ नहीं होते. बहुत सारे ऐसे नो द इंडिविजुअलिज्म जो हमने यूएस से सीखा कि विल क्वेश्चन अवर पेरेंट्स आल्सो, यू कांट स्कोल्ड मी, आप मुझे नहीं डांट सकते. कि कोई है ऐसा कि जिनके पेरेंट्स ना डांटते हो? बताओ कोई बात नहीं, कोई है ऐसा जिसके पेरेंट्स ना डांटते हो? नहीं डांटते? ऐसे क्यों खुजा रहे हो पीछे? सबके डांटते हैं. कोई ऐसा है जिसके पेरेंट्स प्यार नहीं करते उससे? तुम्हें लगता है ऐसा? नहीं लगता नहीं है. ऑफ कोर्स करते हैं प्यार. नहीं, मैं कह रहा हूं कि नहीं करते हैं. किसको ऐसा लगता है कि नहीं करते? मुझे लगा ये कहां से आ गया. कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते. लेकिन एट द सेम टाइम आपने देखा कि किसी ने ये भी नहीं कहा कि मुझे डांटते नहीं है. इसका मतलब डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, है ना. तो ये प्यार और डांटना ये एक पार्ट है आपकी ग्रूमिंग का जो पेरेंट्स करते हैं, और इससे बड़ा रोल कोई लाइफ में प्ले नहीं करता. टीचर्स को मैं मानता हूं सेकंड. सबसे फाउंडेशन है पेरेंट्स. पहले पेरेंट्स आते हैं, फिर टीचर्स आते हैं, फिर बाद में फिर दोस्त आते हैं. आपकी पर्सनालिटी ऐसे ही शेप होती है. लेकिन हम क्या करते हैं? पहले, सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स. पेरेंट्स की हमारी मजबूरी होती है शुरू में, हम जैसे हमारे पंख लगते हैं, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, वो बोलता है लेना मार सुट्टा मार यार, क्या है ना, मार लेते हैं बाहर. हम भूल जाते हैं कि द मोमेंट वी क्रॉस दिस बाउंड्री, अनकॉन्शियसली हमने कितने सारी
मर्यादाओं को तोड़ दिया, कितनों के सपने तोड़ दिए। तो अपने कंडक्ट को खुद रखना, अपने आप देखना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। पढ़ाई तो करते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी बहुत जरूरी है। तो ये बिहेवियर हमें सिखाता है कि हम अपने आप को कैसे कैरी कर सकते हैं। अभी कल मैं बाहर बैठा था लॉन में, और कुछ बच्चे जो हैं ऊपर सीढ़ियों पे ऊपर बैठ के भाई सबको बोला हुआ है कि जब क्लास चल रही हो तो कॉरिडोर्स में ना घूमो, बाहर वो मेन लॉन है वहां पे चले जाओ, वहां पे बैठो, गपियाओ जितना गपियाना है, करो डिस्कस जो भी करना है। वो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और सोचो कि वो गाली दे रहा है, उससे बात कर रहा है दूसरे से, वो एज ए स्लैंग वो गाली दे रहा है, उससे बात कर रहा है। तो अब ये भी ट्रांजैक्शन एनालिसिस है। आप देखो कि वो क्यों कर रहा है ऐसा। तो 7 बच्चे थे, सातों के सातों फंस गए। मैं कहा जब मुझे तुम्हारी गालियां नीचे सुनाई दे रही हैं तो क्लास में तो जा ही रही होंगी, दिस इज नॉट द कंडक्ट। तो गाली देना कौन सा ट्रांजैक्शन होगा बताओ? दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और वो गालियां दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को। अगर देखो एग्रेसिवली गाली दे रहे हैं तो वो पेरेंट ईगो स्टेट है ना? अगर वो वैसे ही गाली दे रहे हैं एडल्ट ईगो स्टेट है। और अगर इमोशंस में दे रहे हैं, मस्ती में दे रहे हैं, तो वो चाइल्ड ईगो स्टेट है। ठीक है? या वो गाली के अर्थ समझा रहे हैं तो वो एडल्ट ईगो स्टेट है। तो दिस इज द कम्युनिकेशन पैटर्न। तो गाली नहीं देनी है किसी को, ठीक है? क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसे ही वाइब्स क्रिएट होती हैं। आप अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तो अच्छी अच्छी बातें ही वाइब्स बनेंगी, वो पॉजिटिविटी चारों तरफ घूमेगी। तो इसीलिए कभी भी खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। हमें लगता है कि नहीं ये तो बड़ी महात्मा वाली बात होगी, महात्मा वाली बात नहीं है ये। दिस इज द एनर्जी विच कनेक्ट्स, व्हाट यू अटर द वर्ड इट गोज अराउंड। तो बी पॉजिटिव, अच्छे शब्द बोलो, अच्छी चीजों का उपयोग करो, और अपने आपस में भी बोलो, प्यार के शब्द बोलो। तो ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस से आप सीखोगे। तीसरी ट्रांजैक्शन कौन सी है? चलो ये तो क्रॉस हो गई जो हम समझ सकते हैं। एक होती है, उसने बोला अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन, अल्टीरियर क्या होता है? तुम्हारा अल्टीरियर मोटिव क्या है? हिडन मोटिव क्या है? सोचो कोई क्लास में सूट बूट पहन के आ गया एक दिन, बोलो यार तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, इवन दो ही मे नॉट बी। सो व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन? Ulterior, hidden transaction. You want to have a sarcasm, you want to pull his leg by having this conversation. किसी की बहुत गंदी राइटिंग है, उसको टीचर उठा के बोलता अरे इतना सुंदर कैसे लिख दिया भाई तूने। अब वो इसमें क्लासिफाई नहीं होगा, वो इट्स एन अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। कई बार अच्छा उसके बाद अगर वो समझ जाता है कि ये तो मेरी लेग पुलिंग हो रही है, तो बोलेगा कि सर आई वुड लाइक टू इंप्रूव इट, मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं। अगर उसको नहीं समझ आया ये अल्टीरियर ट्रांजैक्शन, तो वो सोचेगा अच्छा इतना बढ़िया लिखता था, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है सर मैं ऐसे ही लिखूंगा। तो इट मींस अल्टीरियर ट्रांजैक्शन इज नॉट बीन कम्युनिकेटेड कंप्लीटली। सो इवन अल्टीरियर ट्रांजैक्शन ऑल्सो नीड टू बी अंडरस्टूड। अब इन सारी चीजों में हमें क्या समझ आता है? हमें यह समझ आता है कि भाई देखो, अगर मुझे यह पता है कि मैं इसको ऐसे बोलूंगा, जैसे ही मैं बोलूंगा यार तू क्यों लेट होता है, तो वही उल्टा जवाब देगा, ठीक है? तो मैं क्या करूं? दिस इज माई स्टिमुलस, ये मेरा स्टिमुलस है, ये इसका रिस्पॉन्स है। यहां पे ये स्टिमुलस है, यहां रिस्पॉन्स है, तो पैरेलल आ रहा है। जिस बंदे से पैरेलल आ रहा है, हाउ यू कैन बिकम ए गुड मैनेजर? जिस बंदे से मेरा पैरेलल ट्रांजैक्शन आ रहा है उससे तो मैं वैसा ही स्टिमुलस दूंगा, और क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन मुझे जिससे पता है कि यार ये उल्टा बोलता है, द मोमेंट आई से दिस थिंग, दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ही गिव्स।
तो मैं अपना स्टिमुलस ही चेंज कर दूंगा, मैं अपना स्टिमुलस ही चेंज कर दूंगा। अब मुझे ये एक्स बंदा था, ये वाई बंदा है, इसने तो बोल दिया हाँ सर मैं अगली बार से कल से टाइम से आ जाऊंगा, चिंता मत करो आप। अब ये बोलते हैं, इसको लेट होते के साथ ही ये बोलता है, तो ये अपना पेरेंट ईगो स्टेट चेंज कर देगा। ये इसको बोलेगा यार, चाइल्ड ईगो स्टेट से बोलेगा यार कभी तो टाइम पे आ जाएगा, मैं तुझे कुछ कह नहीं रहा हूं देख, मतलब बट अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं ना तेरे घर आ जाऊंगा लेने के लिए। दिस इज अ वे ही हैज चेंज्ड हिज स्टिमुलस। नाउ ही विल नॉट गेट द रिस्पॉन्स। वो कहेगा अच्छा बॉस यार देखो कितना रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे, चलो मैं कल आ जाऊंगा टाइम पे। पर्पस इज व्हाट? पर्पस इज टू गेट द डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस, पर्पस इज टू गेट द डिजायर्ड बिहेवियर। मुझे उसकी कमिटमेंट चाहिए, मुझे चाहिए वो टाइम पे आके काम कर ले। तो जरूरी है कि मैं अपना स्टिमुलस खराब करूं, मैं ऐसा स्टिमुलस दूं जिससे मेरा झगड़ा ही, अब उससे मैंने कुछ बोला, उसने रिस्पॉन्स दूसरा दिया, दोनों में लड़ाई हो गई, क्या हुआ उससे? प्रोडक्टिविटी खराब हो गई। जब भी आप किसी से झगड़ा करते हो आप अपने डिस्टर्ब कर लेते हो स्टेट ऑफ माइंड। कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, नहीं तो कुछ साल भी हो सकते हैं। चाइना में एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, सुना होगा आपने न्यूज में। वाइफ ने बोला मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, हस्बैंड ने बोला मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। सोचो उन्होंने इस ईगो में 20 साल तक बात ही नहीं की, 20 साल तक बात नहीं की। 20 साल बाद वुमेन सेड सॉरी एंड देन द मैन सेड ओके। तो ये कौन सी बात हुई? मतलब आपने 20 साल खराब कर दिए जीवन के अपने, एक ऐसी ईगो स्टेट में रह के कि जिसमें आप बहुत ही एक अच्छे पल बिता सकते थे। तो ये सेम व्हाई वी आर टीचिंग इट, बिकॉज इन द ऑर्गेनाइजेशन टुमारो वॉट एवर यू बिकम, यू शुड लर्न दैट माई स्टिमुलस इज एक्चुअली द रीजन फॉर हिज रिस्पॉन्स। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे यार वो ऐसे बोलता है क्योंकि वो गंदा आदमी है, वो ऐसे ही बोलता है यार, ही इज नॉट ए गुड पर्सन। तो गलत वो नहीं है, गलत आप हैं। अगर आपसे वो गलत बोलता है तो आप अपना स्टिमुलस चेंज कर दो, यू कैन गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है। अब कोई मान लो कोई गंजा आदमी है, उसके सर पे बाल नहीं है। एक मतलब जब मैं छोटा था तो हमारे वहां ना एक दो बच्चों का झगड़ा हो गया, दो मम्मियां आपस में लड़ गई। तो हम देख रहे थे कि यार क्यों लड़ गए, तो वो कहती है मेरे बच्चे को ना ऐसे करता है देख के, ऐसे करता है देख के। अब वो बच्चा जहां जाए, अब उसके चक्कर में पूरी क्लास उसको ऐसे ऐसे करने लग गई। अब वो चिढ़े जाए। अब हो क्या रहा है? बिकॉज द रिस्पॉन्स यू आर गिविंग, आप दिखा रहे हो कि आप चिढ़ रहे हो, उनको मजा आ रहा है कि आप चिढ़ रहे हो, सैडिस्टिक प्लेजर ड्राइव करते हैं लोग। तो वो स्टिमुलस इसी बात का दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो स्टिमुलस दे रहे हैं और मेरा रिस्पॉन्स ये है, अगर आपने ये एनालिसिस कर लिया कि मेरा रिस्पॉन्स खराब है, तो अपना रिस्पॉन्स चेंज कर दो। तो सोचो अगर उसने ऐसे किया और उसने उसको डांस करके दिखा दिया, नाउ द स्टिमुलस, द पर्सन विल थिंक कि यार कोई फायदा नहीं है इसको ऐसे करने से, तो स्टिमुलस भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आप अपना रिस्पॉन्स ठीक कर लोगे तो दूसरे का स्टिमुलस भी चेंज कर सकते हो, और आप अगर अपना स्टिमुलस चेंज कर दो तो दूसरे का रिस्पॉन्स भी ठीक कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट द ट्रांजैक्शन एनालिसिस टेल्स अस। यही एरिक बर्न का मॉडल है। गॉट इट? एक इसी ईगो स्टेट्स को आगे बढ़ाते हुए एरिक बर्न का एक स्टूडेंट था, थॉमस हैरिस। ठीक है। इसी कम्युनिकेशन में कि लोग ऐसा कम्युनिकेट क्यों करते हैं, तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया लाइफ पोजीशंस का। कुछ लोग अपनी जीवन में कुछ पोजीशन लेके चलते हैं। मतलब some people they take the position because they have some assumptions
some assumptions about their own worth and others' worth. मैं कौन हूं और बाकी के लोग कैसे हैं, इसके बारे में दे कैरी देयर वर्थ. तुम यूजलेस हो, मैं बड़ा सुपीरियर हूं यार, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ये सारे बेवकूफ हैं, ऐसा मेरे अंदर अजम्पशन आता है. तो ऐसा बोला कि ऐसे कुछ लोगों के अंदर अलग अलग तरह की assumptions होती हैं regarding the value, the worth they have of their own. They have their assumption about their own worth and assumption about others' worth. और वो उनकी ईगो स्टेट्स को दिखाता है. तो उसने ईगो स्टेट कॉन्सेप्ट जो एरिक बर्न ने दिया, इसी को आगे बढ़ाया लाइफ पोजीशंस के जरिए. और आपने देखा होगा कि यार एक कोई मुझे बता रहा था, एक टीचर ने पूछा बताओ ऑनेस्टी की स्पेलिंग क्या है. एक राजस्थान के किसी स्कूल का एक किस्सा है. उसने पूछा बताओ ऑनेस्टी की स्पेलिंग क्या है. तो बच्चे ने बोला HONESTY. तो टीचर ने एक दिया खींच के उसको, तू बता. उसने बोला है ऑनेस्टी की सर HONESTY. फिर दिया उसको खींच के, पूरी क्लास को पीट दिया. रियल घटना है. तो अब बच्चे बोले यार आंसर तो सही दिया, ये टीचर क्यों ऐसा कर रहा है. तो एक ने दूसरे टीचर को कहा कि यार वो बच्चे बता रहे थे कि आंसर तो उन्होंने सब सही दिया, सबने स्पेलिंग सही बताई, तुमने पिटाई क्यों लगा दी. तो उसने बोला कि यार मेरी क्लास में बच्चे सही जवाब कैसे दे सकते हैं, सही जवाब तो सिर्फ मैं देता हूं. तो काइंड ऑफ ईगो स्टेट देखो ना कि क्या है कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है. बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जीवन में जिनको अगर आप बोलना शुरू करोगे कि अरे यार देखो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बोलेगा नहीं नहीं कर रही है. अगर वो आप ऐसा बोल दोगे कि यार ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, वो कहेगा नहीं कर रही है, अच्छा कर रही है, क्यों नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि वो जीवन में यही वो स्टेट लेके बैठा है कि सारी दुनिया गलत है, मैं सही हूं. तो ऐसे व्यक्ति से अगर काम कराना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा. आप यू स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट व्यू पॉइंट. अब मैं भी ऐसा करता हूं, मुझे पता है ये काम नहीं करेगा टीचर. वो बोलेगा नहीं नहीं मैं ये काम जो ये बोलेगा मैं उल्टा करूंगा. तो मुझे उसको कन्वीनर बनाना है, तो मैं बोलूंगा यार तुम ना ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है. क्यों नहीं है मेरे बस की सर, मैं कर सकता हूं. अच्छा कर सकते हो, चलो ठीक है तुम्हें बना देते हैं. बनाना मैं उसी को चाहता हूं. सो दिस इज व्हाट यू एक्चुअली डू वंस यू अंडरस्टैंड दैट हाउ पीपल हैव टेकन दी लाइफ पोजिशंस. तो उसने एक चार्ट बताया. People have positive worth about themselves, negative worth about themselves, and negative about others, and positive about others. अब ऐसे देखना, ये क्या है सेल्फ, और ये दूसरों के बारे में. तो ये क्वाड्रेंट क्या बताएगा, पॉजिटिव अबाउट सेल्फ एंड नेगेटिव अबाउट अदर्स. तो इसमें वो बोलता है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके. यू आर नॉट ओके. इसको उसने बोला हाईली इन्फ्लेटेड ईगो. ऐसे व्यक्ति की बहुत ही इन्फ्लेटेड ईगो होती है. कभी भी आप उससे डिस्कशन करोगे वो हमेशा आपको गलत बताएगा. तो जैसे वो टीचर बोलेगा नहीं
HONESTY की स्पेलिंग, ऑनेस्टी की स्पेलिंग HONESTY नहीं है, HONESTY है। मतलब जो तुमने बताया, अच्छा सेम आंसर था, वो गलत है, मैं जो बता रहा हूं ना वो सही है। वाई? बिकॉज ही हैज दिस ईगो स्टेट दैट आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। नेगेटिव अबाउट सेल्फ, नेगेटिव अबाउट अदर्स। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो सबको क्रिटिसाइज करते फिरेंगे, देखो ये गलत आदमी है, ये गलत आदमी है, वो भी गलत कर रहा है। उससे पूछो भाई तुम, अरे मैं भी गलत हूं यार, सारी दुनिया गलत है, सब चोर है। सो आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। This is called as cynical ego. Cynical ego. This is cynical ego. I am not okay, you are not okay. सब गलत है। Then positive about others, negative about self. I am not okay, you are okay. तो मैंने एक दिन एग्जाम में देखा, मैं कॉलेज में जब था, कि मैं लिख रहा था एग्जाम, तो साथ वाला बच्चा जो है ना वो मेरी कॉपी में झांक रहा था। तो उसने एक आंसर लिखा, मैंने देखा यार इसने तो लिख दिया ये आंसर, जबकि वो मतलब मुझे लगता था अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन उसको लगता था कि मैं ज्यादा अच्छा स्टूडेंट हूं। तो उसने मेरा आंसर उसने कॉपी कर लिया। अच्छा मैं अपने 5 क्वेश्चंस कर चुका था, पहला वाला क्वेश्चन उसने नहीं देखा था, तो मैंने क्या किया, मैंने छठा क्वेश्चन भी शुरू कर दिया करना। उसको लगा कि ये क्वेश्चन है इसका, तो वो मैंने क्वेश्चन किया, वो मैंने क्वेश्चन गलत किया, उसने वो कॉपी कर लिया। जैसी बेल बजी मैंने वो काट दिया। उसने वो कहा है ये तुम काट क्यों दिया? तो मैंने कहा यार मुझे लगा कि ये गलत है। तो बोलता है यार मेरे को तो आता था ये क्वेश्चन, पर मुझे लगा कि तुम सही कर रहे हो, क्योंकि तुमने बाकी के जो 4 क्वेश्चन किए वो एकदम सही किए, तो मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। तो वो उसकी ईगो क्या थी? सेल्फ पिटी ईगो। सेल्फ पिटी ईगो कि जो दूसरा कर रहा है यार वही सही है, तुम्हारी थाली में घी ज्यादा है ना। देखा ना जब कहीं खाते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में कोई लेके आता है, उसको भी अरे यार उसके में एक ये आइटम ज्यादा है। वी ऑलवेज कंपेयर। व्हाई? बिकॉज वी गो बाय दिस दैट अदर्स आर बेटर देन अस। सो व्हाई टू हैव दिस? इट शेक्स द कॉन्फिडेंस दैट आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। ये होना ही नहीं चाहिए। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है या दूसरे का बिहेवियर ऐसा क्यों है। अब ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप सोचोगे कि यार ये तो हम करते आ रहे हैं इतने टाइम से। तो पर्पस ऑफ टीचिंग इज दिस दैट वंस यू स्टडी इट यू विल बी एबल टू नो, यू विल हैव द अवेयरनेस अबाउट इट एंड देन यू विल करेक्ट योरसेल्फ। जो सबसे हेल्दी ईगो स्टेट बताया वो है आई एम ओके, यू आर ओके। दिस इज पॉजिटिव ईगो। दिस इज पॉजिटिव ईगो। ऐसे लोग बड़े कामयाब होते हैं लाइफ में। मीटिंग्स में बहुत सारे लोग एकदम जैसे ही कोई बोलेगा अच्छा इसने ये बोला है मुझे काउंटर करना। पार्लियामेंट में देखो आप, समटाइम्स यू अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपोजिशन करेंगे कुछ लोग, नहीं 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 ये गलत है ना। तो मीटिंग्स में भी, ऑफिशियल मीटिंग्स में भी पीपल डू दैट। स्मार्ट पीपल डू व्हाट? अब स्मार्ट बॉस भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। आपने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, अब मैं एग्री नहीं करता इससे। देयर आर 2 ways टू से इट। एक तो बोलूंगा बिल्कुल बकवास, गलत, नहीं चलेगा। अनदर इज यू आर राइट, यू आर ऑल्सो राइट, बट सी
what I am saying is also right. And I think it is more correct. तो आपको मैंने गलत नहीं कहा, मैंने कहा कि आप भी सही हो, मैं भी सही हूं, मेरा वाला थोड़ा ज्यादा करेक्ट है अगर आपको लगता है तो. This is how the smart people push their decisions rather than criticizing, rejecting and creating the resistance against them. अपने अगेंस्ट रेजिस्टेंस खड़ा करने का क्या फायदा है? किसी को बोल के अरे तू गलत है, बिल्कुल गलत है, तेरे को नहीं आता कुछ भी. आप बोलो यार आपका बहुत अच्छे सजेशन है, वेरी क्रिएटिव सजेशन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो जो मैं बोल रहा हूं वो भी सुन लो. सो आई एम ओके, यू आर ओके. सो दीज आर द 4 ईगो स्टेट्स. ब्रैकेट में ईगो स्टेट्स लिखी हैं. दिस इज व्हाट द मॉडल वाज गिवन बाय थॉमस हैरिस, राइट? So these are the 2 models of transaction analysis that you are supposed to do, right? Thank you.